Hello everyone, welcome back to my channel. And today's topic of the video is describe a difficult task you completed at work or study that you felt proud of. एक difficult task को explain करो जो आपने complete किया work या फिर study में और जिसकी वजह से आपको proud feel हुआ. It's a new cue card from September to December cue card list and the bullet points of this cue card are what the task was, कौन सा task था, how you completed it, कैसे आपने उसको complete किया, why the task was difficult और task difficult क्यों था, why you were proud of the completion of the task और explain करो क्यों आपको proud feel हुआ जब task complete हो गया. So the sample answer of this cue card is difficulties and challenges are the part and parcel. It's an idiom which means the essential feature of everyone's life. Difficulties और challenges जो है हर एक की life का एक essential part है. And a person who confronts hurdles boldly और एक ऐसा person जो कि मुसीबतें hurdles means रुकावटें मुसीबतें confront means सामना करता है उनका boldly बहादुरी के साथ and overcomes them. Overcomes them means उन पर जीत प्राप्त करता है usually reaches at the heights of success which means becomes successful. वो person ज़्यादातर successful बनता है. If I talk about myself, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, I have faced various adverse situations. तो मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस को फेस किया हुआ है. However, today I'm going to shed light, which means to provide information about or shed light on a difficult task. मैं एक ऐसे difficult task के बारे में information provide करने जा रहा हूँ which made me feel proud, जिसकी वजह से मुझको proud feel हुआ. Actually, when I was in my +1 grade, जब मैं अपनी +1 grade में था, the sums of maths were the hard nut to crack. It's again an idiom which means difficult to understand or solve for me. उस टाइम पर जो मैथ्स के सम थे वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे अंडरस्टैंड करने के लिए बिकॉज आई वॉज वीक इन मैथ्स क्योंकि मैं मैथ्स में वीक था. ड्यू टू दिस इसी वजह से आई यूज टू गेट पनिशमेंट फ्रॉम माई प्रोफेसर. मुझे ज़्यादातर पनिशमेंट मिलती रहती थी, मेरे प्रोफेसर थे. However, once my teacher provided homework to learn all the formulas of maths and made my fun laugh at me by saying that everyone can learn but I can't. मगर एक बार हमारे टीचर ने हमको होमवर्क दिया कि सभी फार्मूलाज को लर्न करना है मैथ्स के और मेरा मजाक उड़ाया ये कहकर कि सभी लर्न कर सकते हैं मगर मैं नहीं कर सकता. Even through my whole life, मेरी whole life के दौरान भी नहीं पढ़ सकता. That's why I made up my mind, which means decided to learn at any cost. At any cost is an idiom which means regardless of the efforts needed. तो इसीलिए मैंने अपना माइंड बना लिया, डिसाइड कर लिया कि मैं पढ़ूंगा फार्मूलाज को एट एनी कॉस्ट, चाहे जितने भी मुझको एफर्ट्स करने पड़ जाए. We have discussed what the task was and now I am going to give the answer of the second bullet point, how you completed. कैसे आपने complete किया. I started learning after reaching home. मैंने घर पर पहुंचने के बाद पढ़ना स्टार्ट कर दिया but it was an arduous task, a difficult task. मगर ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल टास्क था. For all the formulas were similar for me. For हमने यहाँ पर बिकॉज के प्लेस पर यूज़ किया और कम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्म किया है और क्योंकि सभी फार्मूलाज मेरे लिए सिमिलर्स थे. ड्यू टू विच आफ्टर अंडरस्टैंडिंग वन, जिसकी वजह से एक को अंडरस्टैंड करने के बाद आई वॉज फॉरगेटिंग द अदर, मुझे दूसरा फार्मूला भूल रहा था. मोर ओवर आई वॉज अबाउट टू गिव अप द होप टू मेमोराइज द फार्मूलाज. मैं गिव अप मीन्स हार मानने वाला था, छोड़ने वाला था होप को कि मैं मेमोराइज कर पाऊँगा फार्मूलाज को. एंड टीयर्स वर इन माई आइज़, और मेरी आइज़ में टीयर्स थे. दैट माई मॉम नोटिस्ड इट, कि मेरी मॉम ने इसको नोटिस किया. शी इनकलकेटेड, इनकलकेटेड मीन्स कोई चीज़ को पैदा करना. इनकलकेटेड द करेज, उन्होंने मेरे अंदर इनकलकेट किया करेज in me by saying that nothing is impossible if we do the things in full swing. It is again an idiom which means with full energy or force. तो उन्होंने कहा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम फुल एनर्जी के साथ उस काम को करें. इट एक्टेड एज अ मिरेकल, इसने एक मिरेकल की तरह काम किया, चमत्कार की तरह काम किया. एंड आई बिकेम डेटरमाइंड, और मैं डेटरमाइंड बन गया. देन बाय बर्निंग मिडनाइट ऑयल. इट्स अगेन एन इडियम विच मीन्स स्टेइंग अवेक एट नाइट टू स्टडी. I memorized all the formulas and they were on my fingertips. फिर रात को जाकर स्टडी करके मैंने सभी फार्मूलाज को मेमोराइज कर लिया और वो सभी फार्मूलाज मेरे फिंगर टिप्स पर थे.
नेक्स्ट डे व्हेन टीचर कंडक्टेड टेस्ट माई एवरी फार्मूला वॉज करेक्ट। जब नेक्स्ट डे टीचर ने टेस्ट लिया तो सभी फार्मूलाज मेरे हर एक फार्मूला जो था करेक्ट था। वेयर एज मगर नो वन इन माई क्लास वॉज एबल टू लर्न ऑल, कोई भी पर्सन मेरी क्लास में सभी पढ़ने के लिए एबल नहीं था। कैसे कंप्लीट किया टास्क ये हमने बता दिया। और हमारा थर्ड और फोर्थ बुलेट पॉइंट है व्हाई द टास्क वाज डिफिकल्ट, टास्क क्यों डिफिकल्ट था और आपको प्राउड क्यों फील हुआ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क। एट लास्ट में टीचर प्रेज्ड मी इन द क्लास में टीचर ने मेरी प्रेज की एंड गिव मी अ पेन एज रिवार्ड, और मुझको पेन दिया रिवार्ड के रूप में। बियॉन्ड क्वेश्चन अनडाउटेडली इट वाज नॉट अ पीस ऑफ केक विच मीन्स एन ईजी टास्क, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मेरे लिए कोई ईजी टास्क नहीं था। बिकॉज आई हैड नेवर लर्नड अ सिंगल फार्मूला अर्लियर, क्योंकि पहले मैंने कभी भी एक सिंगल फार्मूला भी नहीं पढ़ा था। एंड वीकनेस इन मैथ्स वाज पुटिंग फ्यूल इन फायर। Putting fuel in fire is again an idiom which means making miserable situation even worse, और मैथ्स में वीक होना सिचुएशन को और बुरा बना रहा था। However, on completion this task, I felt proud and on the seven heaven, एक तो मुझे प्राउड फील हुआ और मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी भी फील हुआ जब ये टास्क कंप्लीट हो गया। ऑन द सेवन हेवन अगेन इज एन idiom as I was the only one who learned all the formulas and got prize, क्योंकि मैं अकेला ही था क्लास में जिसने सभी फार्मूलाज को पढ़ा था और प्राइज भी जिसको मिला। आई गॉट इरोडिशन विच मीन्स नॉलेज फ्रॉम दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट से मुझको नॉलेज मिली दैट इफ़ वी मेक आवर माइंड, अगर हम अपना माइंड बना लेते हैं वी कैन अचीव वट एवर वी वॉन्ट, हम अचीव कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड द आंसर ऑफ बोथ द लास्ट बुलेट पॉइंट्स इन दिस paragraph. I hope you like my video, and if you like my video then like it, share it with others, and also subscribe my channel for more such kind of videos. Thanks for watching.